ओके सो पहली चीज़ है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो एक्शन है बॉडी के ऊपर फोर्सेस और मोमेंट्स के फॉर्म में, उनकी वजह से बॉडी एट रेस्ट है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है बॉडी एट रेस्ट है अंडर द एक्शन ऑफ ऑल द अप्लाइड लोड्स। ठीक, ओके। जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस अगर एक कोप्लेनर फोर्सेस हैं, कोप्लेनर से मुराद ये है कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है दे इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक, सॉरी कॉन्करेंट, आई वांट यू टू से कॉन्करेंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट। अगर वो लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये हमारे पास बॉडी है, इस पे ये फोर्सेस हैं, इनको हमने वेक्टर, ये जो आपको ऊपर लाइन नज़र आ रही है ना, इसका मतलब ये वेक्टर्स हैं, F1, F2 एंड F3, एंड यू नो फोर्स इज अ वेक्टर। ये हमारा रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, X, Y और Z। ऑलराइट, अब इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट ये है कि द सम ऑफ दीज फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। व्हाट इट मीन्स इज दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस शुड बी, एज यू नो, F1 plus F2 plus F3, that should give you a null vector. Is what you have learned? Okay. Now, this is how you write the equilibrium equation in vector form. But most of the times, this is not the convenient way of writing down this equilibrium equation, because it involves vectors, which means you need to carry the magnitude as well as direction. You cannot simply add the two numbers. So what we do is we resolve these forces into components along our reference coordinate system like X, Y, and Z, and then we deal with those components like this. So you can resolve them into components, and then this is how you deal with the problem. Instead of having to deal with the vector equations, we made sure that we resolve each force. For example, for F1, we resolve F1 into X component, into Y component, and then into Z component. So we have all three components of F1, and then similarly for F2 and then for F3, and then we add up all components of these forces, F1x, F2x, and then F3x in one direction, and we make sure that it is equal to 0. And similarly for the Y direction, and similarly for the Z direction. Okay, give me a second. I'm sorry, I had to pick this equation. So if you look at these equations, you will see we have resolved F1 into X, Y, and Z component, similarly F2 into X, Y, and Z, and then F3 into X, Y, and Z component. Then we are adding up all the X components, F1x, F2x, and F3x, and then we say that this should be equal to 0. If all the three components are equal to 0, it means the resultant would also be equal to 0. Alright? So, now this is a generalized form of coplanar forces. Generalized means you can have a force be directed along any direction. It can have all three components. So it is in the 3D space. But more often in civil engineering, we encounter structures, we encounter system of forces which can be resolved, which can be analyzed completely in single plane. So all of the forces are in single plane in that case. So if that is the case, for example, in one plane, maybe in XY plane, maybe in YZ plane, maybe in whatever plane it is, if all forces are in the same plane, they are coplanar forces. In that case, you will say these are coplanar concurrent forces. So in that case, these three equations will reduce to only two equations. For example, if it is only in XY plane, then naturally the Z component of all forces would be 0, and that means this third equation will be naturally satisfied because there are no force with any component along Z. It means you need to check these
these two equations only, x and y, whatever are the names. Maybe if it is in the yz plane, you need to deal with the y and z components only, and the rest of all components along the other direction would naturally be equal to 0 by definition. Alright. So in case of coplanar system of forces, and if we're discussing concurrent forces, and we're discussing two sub cases in that. One is when the forces are in 3D space, so they can have component along any of the x, y and z direction, and in the other case it's a special case which is more common in civil engineering. It is a system of coplanar forces. So if the system of forces is if we have a coplanar system of forces, in that case you only need to deal with any of these two. For example, if it is in the xy plane in the first three equations. Alright. Next we talk about, I'm sorry, this was non-concurrent. Now if the body is subjected to forces which are not concurrent, just as for example in this case, like this one, now in this case you see that F1 and F2 are still concurrent, but F3 is not concurrent. If any of the force has a line of action not intersecting at the rest of the intersection of the rest of the forces, it means the system is non-concurrent. Alright, now if it is non-concurrent, it means the forces are not just displacing the body, they are also able to rotate the body about any reference axis. It means there is a possibility, so there is a possibility that the forces may be just not able to translate it, but may be able to rotate it. And if it is rotating, then the body is still not in equilibrium. So it means for non-concurrent forces, non-concurrent force system, you have to have another additional equation, which is, I can just bring it down from here. And this time we are discussing it only for a coplanar system of forces. This is for coplanar system of forces, which means all of the forces are in the xy plane, let's say xy plane. So these are all this is for the coplanar system of forces. If these were not coplanar, we would have 3 equations for translation and 3 equations for moments. I mean, we would have equations like this. Let me write down what it would look like if it were not. Give me a second. If we have 3 forces, this will be up to 3, okay? And similarly, what I can do is, so these 3 for, as we did for the coplanar system of forces, these are similar, but what we have additionally is the moment about x-axis. Any point directed along x-axis would be equal to 0. Any point about z-axis would be equal to 0. About y-axis would be equal to 0. Now this is what you will have if you have
नॉन कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जिसमें कोई भी फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो देन यू विल हैव दिस six equilibrium equations, 3 for the forces and 3 for the moments, because you can have force along x, y and z, you can have moment about x axis, about y axis or about z axis. Now if all forces are, if the system of forces is coplanar, for example if all of them are in the xy system, in that case you have this equation and then this equation, because no force has component along this will naturally be satisfied, so you don't have to worry about this. And since all forces are in the xy plane, what do you think, which equation will be applied, will apply? Which of these three will apply? We have forces in the xy system, मतलब ये बोर्ड है, इसमें फोर्सेस लाई कर रही हैं इस प्लेन में, बोर्ड सिर्फ आपको फिजिकली समझाने के लिए कह रहा हूँ, और मैं मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करने जा रहा हूँ कि मैं समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक, ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z है आउटवर्ड, ठीक। तो आप मुझे बताएं कि जो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो कौन सी अप्लाई होगी इन तीन में से, यानी कौन सी मुझे यहाँ पे रखनी चाहिए। जैसे मैंने z को कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी दो है इसमें है, इनकी ज़रूरत नहीं है। आई हैव टू हैव वन ऑफ द इक्वेशंस, व्हिच वन शुड बी ओवर हियर? अच्छा, डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट वी से, व्हाट वी मीन व्हेन वी से moment about certain axis? For example, if I have force acting in this direction, the only thing it can do, I mean, अगर ये ऐसी force लग रही है तो ये जो rotation करेगा, मतलब या चले मैं आपको ये body है मेरी and ये force लग रही है, ठीक, और ये force इस extra plane में contained, ये ऐसे भी लग रहा हो या ऐसे लग रहा हो, जैसे भी लग रहा हो, जब तक ये इसके अंदर contained हो तब तक मेरे जो इस बॉडी को ये रोटेट ऐसे ही कर सकते हैं, एग्री? ये बॉडी भी इसी प्लेन में, ये जो फोर्स है इसी प्लेन में, ये इसकी रोटेशन ऐसे करे जैसे भी करे, लेकिन इसी प्लेन में इसको रोटेट कर सकेगा ना। ये रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट हो रही है? ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। व्हाट इज ये रोटेशन किसके अबाउट हो रही है? अबाउट जी एक्स। इसका मतलब ये यहाँ जितनी भी फोर्सेस लगेंगी एक्स वाई प्लेन में, all they can do is rotate it about z axis. The only possibility that they will be producing a net moment is the moment produced about z axis, because the forces are all in the xy plane. Do you get this point? It means out of these three, this one is critical. I mean, this is what we need to satisfy. The rest is, I mean, अगर ये force वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये जो अबाउट x और अबाउट y है, ये अगर ये बोर्ड आप, जैसे आपको मैंने यहाँ दिखा रहा था, अगर आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर ये फोर्स, अभी ये मेरा xy प्लेन है, आई होप यू कैन इमेजिन दिस, ये मेरा xy प्लेन है, अगर ये इस xy प्लेन में लगेगा, the only thing it can do is rotate it about z axis. This is z axis, ठीक? अच्छा, छोटी सी टर्मिनोलॉजी आपके साथ ये भी शेयर करते हैं, हम कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं रोटेशन अबाउट z axis, ठीक है? जिस एक्सिस के अबाउट है उसको हम कहते हैं about z axis. लेकिन समटाइम्स इसको, इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि it will rotate this object in the xy plane. मैंने क्या कहा? In the xy plane, यानी इस प्लेन में रोटेट कर रहा है और about this axis रोटेट कर रहा है। अच्छा, just to give you an idea कि अगर about x इसने घूमना हो, about x रोटेट करना हो, तो किस तरह की फोर्स चाहिए होगी? अगर ऐसे में इसको फोर्स अप्लाई करूं तो इसको ऐसे रोटेट ये पॉसिबली कर सकता है, ठीक है? तो करेगा यानी दैट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कर सकता है, ठीक है? ये अबाउट x हो रही है, ये इस प्लेन में हो रही है और इस एक्सिस, ये एक्सिस को मैंने x कहा हुआ है ना, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ना, क्लियर? बाकी इसके बाद फिर हम साइन कन्वेंशन और कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ आएंगे कि इसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, बट राइट नाउ व्हाट वी टॉक, इसका मतलब है यहाँ पे जो m अबाउट o लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट o है, अच्छा यहाँ से एक और चीज भी समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है अबाउट o और मैं कह रहा हूँ अबाउट z, तो दोनों डिफरेंट चीजें नहीं लग रही हैं आपको? मैं इसको कह रहा हूँ मोमेंट अबाउट z एक्सिस और ये कह रहा है अबाउट o. Are these same things or different?
अच्छा, अगर मैं सिर्फ कहूँ कि अबाउट z, अगर मैं सिर्फ अबाउट z कहूँ तो फिर इसका मतलब ये है, इफ यू कैन कम बैक टू दैट सिचुएशन, इसका मतलब ये कि मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट, यानी वो जो मेरा z एक्सिस है, यानी वो जो मेरा, मैं इसको z एक्सिस, क्योंकि मैंने एक खास एक्सिस इसको कहा हुआ है समवेयर ओवर हियर, या मेरी जनरली एक z एक्सिस होगा, लेकिन जिस एक्सिस को मैं कह सकता हूँ कि पैरेलल टू z जो इसका बनेगा, उसका साथी जो इसका आप कह सकते हैं, जो भी z के अलावा होगा, लेकिन वो उसी पॉइंट पे नहीं पास कर रहा होगा जहाँ पे मैंने x y z के अंदर मैंने z को कहा हुआ है। अच्छा, मैं इसको ऐसे कहता हूँ, ये बॉडी मैं यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये इसको ऐसे रोटेट कर सकता है, अब ये रोटेशन अबाउट z हो रही है, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं, या मैं ये नहीं कह रहा कि हो रही है नहीं हो रही, मैं अब इसको टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक। आप इमेजिन करें कि इसको अभी मैं जोर लगा रहा हूँ, लेकिन ये रोटेट नहीं हो पा रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक, अब ये चिपका हुआ है, जो भी वजह है, ठीक, तो मैं यहाँ इसको ऐसे जोर लगा रहा हूँ, ठीक। अब आप मुझे नहीं पता कि जब ये घूमेगा तो किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, हर एक्सिस के अबाउट इसकी एक टेंडेंसी है घूमने की। मसलन अगर मैं इसको यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी टेंडेंसी जो रोटेट अबाउट दिस एक्सिस कितनी है, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ अबाउट दिस एक्सिस कितनी है, तो वो डिफरेंट टेंडेंसीज होंगी। वो जो टेंडेंसी टू रोटेट की एबिलिटी टू रोटेट है, उसी को हम मोमेंट बोलते हैं ना। दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं इसका मोमेंट अबाउट दिस एक्सिस डिफरेंट होगा, अबाउट दिस एक्सिस डिफरेंट होगा, क्योंकि वो जो लीवर आर्म है ना, वो बेसिकली चेंज हो रहा है ना, वो तो आपको पता है उसके बारे में। जब मैं कह रहा हूँ कि अबाउट z एक्सिस, तो मैंने ये नहीं कहा हुआ कि वो जो z एक्सिस है वो कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, अनस्पेसिफाइड नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि मोमेंट अबाउट O, और O को मैंने शो किया है इन एक्स वाई प्लेन, लुक एट दिस फिगर, ये O कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। जब मैं कह रहा हूँ मोमेंट अबाउट O, इसका अगर मैं लंबी एक्सप्लेनेशन कहूँ या इसका लंबा नाम रखूँ, पूरा नाम इसका लूँ, तो मैं कहूँगा मोमेंट अबाउट z एक्सिस पासिंग थ्रू O। क्लियर? अब आपको z एक्सिस और O में बात समझ आ गई। अगर खाली मैं O लिख देता हूँ और O को मैं उस एक्स वाई प्लेन में शो कर देता हूँ, तो ये कंफर्म है कि अबाउट z हो रही है। इसके बाद जब भी हम अबाउट सर्टेन पॉइंट की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोमेंट होता हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट है, किसी पॉइंट के अबाउट होता नहीं है। ये मुराद ये है कि होता किसी एक्सिस के अबाउट है, लेकिन वो एक्सिस कहाँ पे लाई कर रहा है वो बताने के लिए हम सिर्फ पॉइंट बता देते हैं, ठीक। इसका इम्प्लाइड होता है, यानी अंडरस्टूड होता है कि वो जो एक्सिस वहाँ से पॉइंट से गुजर रहे हैं ना, उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये हम बहुत दफ़ा इस चीज़ को यूज़ करेंगे, हम आगे हमारी टेक्नोलॉजी यही चलेगी, हम ये नहीं कहेंगे अबाउट z एक्सिस, वी विल शो यू अ बॉडी एंड अक्सर हम ऐसे कर दिया करेंगे। अब आप आगे आज ही आप देखेंगे इस तरह का हम कहते हैं यहाँ पे, ये मैं कैसे करूँगा, लास्ट टाइम शायद जिक्र हुआ, तो वो ये मैं आपको समझाने लगूँ, ये आप सारी चीज़ मैंने आपको बेसिक बता दी है, ठीक। हम ऐसे कह रहे हैं कि यार टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट, ये लेट्स से पहले मेरा पॉइंट A था और एक ग्रुप B था, तो मैं कहता हूँ टेक मोमेंट अबाउट A। हम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हम अबाउट x यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस कोर्स में स्पेशली कम यूज़ किया करेंगे, कि हम सिर्फ पॉइंट के अबाउट कहते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, और उस पॉइंट के अबाउट का मतलब आप समझ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, और एक्चुअली फिर z मेरा आउट ऑफ द बोर्ड है, या इनटू द बोर्ड जो भी डायरेक्शन है उसकी, आउट ऑफ द बोर्ड। तो जब मैं कहता हूँ समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A, तो ये असल में मोमेंट अबाउट किस एक्सिस के ले रहा हूँ, z के। z मुझे कैसे पता चलेगा कि z है, अगर मैं इसका नाम रख लेता है ऐसे, मैं कहता कि ये है मेरा z, ये है मेरा y, तो अब ये किसके अबाउट होता, अबाउट x, जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट ये मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? सॉरी, अगर तो प्लेन मेंशन्ड है तो यू हैव टू स्टिक टू दैट, वो जो प्लेन मेंशन्ड है उसके साथ आपको उसको नाम देना है। अगर प्लेन मेंशन्ड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट, मतलब मैं भी इसका एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे अंदर ये सिस्टम फीड हो चुका है कि अगर नहीं मेंशन तो हम एक्स वाई रहता है, काइंड ऑफ एन असाइनमेंट कम्युनिकेशन। अगर नहीं मेंशन तो हम कहते हैं ये एक्स वाई, मे बिकॉज़ वी आर मोर कंफर्टेबल विद एक्स एंड वाई, ठीक। जब ज़्यादा जरूरत हो तो फिर हम z पे चले जाते हैं, अदरवाइज वी ऑफन कीप प्लेइंग विद इन एक्स एंड वाई, ठीक। और आपको ये भी
माइंड में अब स्टिक हो चुका होगा कि अक्सर हम हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई, मतलब दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वेंशन, अदरवाइज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। समटाइम्स सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है, मेरा आपको यहाँ बताने का पर्पज़ ये है कि अगर मेंशन नहीं है तो आपको पता हो कि क्यों मेंशन नहीं है। मगर मैं एक्स और वाई लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ अबाउट ए, या मैं जी की बात ही नहीं कर रहा, तो आपको पता हो कि अबाउट जी हो रही है बात, और हम उस जी को स्पेसिफाई करने के लिए कि वो जी कहाँ पे गुजर रहा है, उस पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि वो पॉइंट स्पेसिफाई हो जाए तो हमारे पास वो जो आपका मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो आपको मोमेंट आर्म चाहिए वो स्पेसिफाई हो जाता है, लिहाजा हम बस एक पॉइंट पर बात खत्म कर देते हैं। इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का पर्पज़ ये है कि ऑफन जब मैं हायर यानी डाउन द सेमेस्टर जब हम जाएंगे तो हम कुछ टॉपिक्स में पढ़ रहे होते हैं, और मैं सडनली मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मोमेंट तो आप कैलकुलेट तो कर लिया भाई आपने, ठीक है। अभी उनको मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कहा है, ठीक, मैंने उसको वो आप पढ़ लेंगे वो क्या होती है, ठीक। वो अभी 5th सेमेस्टर का एक पेपर उसका रह रहा था, वो दे रहा है। अब वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट कर लेगा ना, मैं उसका आके वो सारा काम कर देगा, एंड में मैं उससे ये पूछूंगा ना ये किस एक्सिस के अबाउट है। मैंने उसको नाम नहीं भी दिया तो मैं फिजिकली तो बता सकता हूँ ना, कि मतलब ये अगर मैं नाम भी कहूँ कि ये एक्स वाई और जी है, मुझे आपसे कहे कि ये मोमेंट अबाउट ये आप ले रहे हैं किसके अबाउट है, तो मैं आपको नाम ना भी बता सकता हूँ, तो ये इशारा तो कर सकता हूँ ना कि ये वाला एक्स है, आप नाम जो भी दे दें उसको। मोस्ट ऑफ देम वुड नॉट नो इट, मोस्ट ऑफ देम, मतलब उनको नहीं पता कि ये बुक यानी कैलकुलेशंस में वो मास्टर हो चुके होंगे, मास्टर भी खैर नहीं हो चुके होंगे, लेकिन जो हो चुके होंगे, लेकिन उनको ये भूल जाता है कि ये बेसिक था क्या इसके बारे में, ठीक। सो आई वांट यू टू स्टिक टू दिस बेसिक। जब भी हम इस बात इस चीज़ का मेंशन करेंगे, सो यू आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अगर सिस्टम, कमिंग बैक टू दिस नॉन कंकरेंट फोर्सेस सिस्टम, अगर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो चूंकि वो एक मोमेंट भी, नेट मोमेंट भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर या इक्वेशंस में दो एक और चीज़ भी आ जाएगी, समेशन ऑफ मोमेंट्स की। असल में इक्वेशन ऐसी थी, असल में जो इक्वेशन थी वो ये थी, अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें, असल में इक्वेशन ऐसी, जनरल इक्वेशन, आई एम सॉरी, एक्चुअली ये था, उसको हमने रिजॉल्व कर लिए कंपोनेंट्स में, तो ये 6 इक्वेशंस बन गए, ठीक। और इन 6 में से हमने कहा कि अगर जो फोर्सेस हैं वो एक प्लेन में कंटेन्ड हो तो हमारे पास सिर्फ 3 इक्वेशंस रह जाएंगी, ठीक। इसके बाद अक्सर हम को-प्लेनर सिस्टम, हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस होंगी ना वो अक्सर को-प्लेनर होंगी। तो अब हम अक्सर, जब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर सिस्टम नॉन कंकरेंट है तो हमारे पास कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, अब ठीक है 6 हैं, लेकिन 6 किस केस में हैं? अगर 6 इक्वेशंस किस सिस्टम के केस में बनेंगी? नॉन कंकरेंट, नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर हमें जो स्पेस में कहीं भी लाई कर सकते हैं उसको कह रहा हूँ, ठीक, क्लियर? नॉन, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? इससे पहले हमने कंकरेंट की बात कर ली। कंकरेंट में हमने कहा मोमेंट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो कंकरेंट फोर्स सिस्टम है ना, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ऐसे इस पॉइंट पे मीट कर रही है ना, तो इसके अबाउट अगर आप मोमेंट लें तो सारा सबका मोमेंट क्या आएगा? 0। तो नेचुरली वो तो सेटिस्फाई होना ही है ना। आप लिखेंगे 0 = 0, बस बात खत्म हो जाएगी, एंड ऑफ द स्टोरी। मैं आप अप्लाई करना भी चाहें तो 0 = 0 आ जाएगा, डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा, हमने कहा कि अगर सिस्टम जनरलाइज सिस्टम है, यानी 3D स्पेस में है, तो फिर वी विल हैव दीज 3 इक्वेशंस, और अगर किसी एक प्लेन में कंटेन है देन वी विल हैव ओनली 2 इक्वेशंस। नाम चलो आपको नहीं भी याद, को प्लेनर, कॉन्करेंट में कंफ्यूज नहीं भी हो रहा, तो आपको आई होप समझ आ रही है कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक। सो कंकरेंट फोर्स सिस्टम तो सिंपल है। आपने ट्रसेस का एनालिसिस स्टार्ट कर लिया होगा, मेथड ऑफ जॉइंट्स पढ़ लिया। मेथड ऑफ जॉइंट्स में जब आप किसी जॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो वो सारी जो फोर्सेस आप शो कर रहे होते हैं दे आर कॉन्करेंट ऑन दैट जॉइंट, क्योंकि वो जो मेंबर्स हैं वो इस तरह से जोड़े गए हैं
कि वो जो उनकी सेंटर लाइंस हैं दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एंड दैट्स वाई उनके अंदर जो फोर्सेस हैं सिंस दे हैव टू पास थ्रू द सेंटर लाइन ऑफ द मेंबर, तो वो जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चूँकि कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम बन रहा होता है, इसलिए आप अगर आपको इक्वेशंस भी याद होंगी, आपने शायद जो मैं आप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, आपने और नहीं किया कि हम इसमें समेशन एम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज द रीज़न. क्लियर? नेक्स्ट, नॉन कंकरेंट फोर्सेस. लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू. नॉन कंकरेंट में हमने कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे प्रोड्यूस अ नेट मोमेंट अबाउट सर्टेन पॉइंट एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू कंसीडर द समेशन ऑफ मोमेंट्स एज वेल, and that's why these are the two generalized vector equations. All right, but if we resolve all forces, let's consider generalized case first, जिसमें कोई भी force किसी भी plane में lie कर सकती है 3D space में. In that case we will have these 6 set of equations, ये 6 equations होंगी, और अगर co-planar होंगी तो 2 हमारे पास force equilibrium equations उस plane के अंदर जो 2 directions हैं उनके along, जैसे x y हैं तो x y के along, और एक हमारे पास जो थर्ड डायरेक्शन है उसके अबाउट मोमेंट की इक्वेशन होगी. क्लियर? जी. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी तो मूव नहीं करेगा. हम कह रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं वो नेट मोमेंट नॉन जीरो मोमेंट प्रोड्यूस कर सके, तो वो फिर उन इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये है कि वो जो इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाइड है, वो जीरो हैं. जो समेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, दीज 3 आर ऑल इक्वल टू 0. अगर होगा, अच्छा हम इसको ऐसे लेंगे, इसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है. ठीक. दूसरा वे इसका जो हम इसको यूज़ करेंगे जिस फॉर्म में, वो ये होगा, हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में लिहाजा ये सेटिस्फाइड है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है. क्लियर? क्लियर? यानी knowing that the body is in equilibrium, we will say that these equations must be satisfied because only then it can be in equilibrium. Clear? All right. Yes, please. अच्छा, मैं चाह रहा था मैं आपको सपोर्ट पढ़ा दूँ तो फिर इसका जवाब दे दूँ. आपको तो शायद जवाब लगे कि ये जवाब देना चाहिए, लेकिन बाकियों को ना फिर वो दे विल फील इररेलेवेंट विद द क्वेश्चन. मैं आपको आंसर डेफिनेटली भी कर तो सकता हूँ, लेकिन इफ़ यू कैन होल्ड दिस क्वेश्चन फॉर जस्ट अ वाइल, आई होप यू विल गेट द आंसर इन अ वाइल. ठीक है. ये हमने नेक्स्ट सपोर्ट्स को बात करनी है. हिंज क्या होती है, फिक्स क्या होती है, ये मैंने आपको अभी बताना है. इनको शायद अभी ना पता हो. तो आपने डिप्लोमा किया हुआ? आपने डिप्लोमा किया हुआ? अच्छा, आपने फिक्स सपोर्ट का नाम सुना? अच्छा, आपने डॉक्टर शेख ने आपको पढ़ाया. ओके. मैं आपको इसके बाद यही क्वेश्चन आप पूछ लेना मुझसे दोबारा. इफ़ आई डोंट आंसर इट, आस्क मी अगेन. ठीक है? आई विल डेफिनेटली आंसर इट. ऑलराइट, सो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. क्लियर हो गया? अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो बॉडी पे जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो 2 टाइप्स की होंगी. एक होंगी अप्लाइड लोड और एक होगी रिएक्शन फोर्सेस. होंगी दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी दोनों वो पूरा जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जिसकी हमने अभी बात कर ली है, वो दोनों ही इसका पार्ट होंगी, लेकिन 2 डिफरेंट टाइप्स होंगी उनकी. एक होगी अप्लाइड लोडिंग और एक होगी सपोर्ट रिएक्शन. आप खाली रिएक्शन भी कह दें तो आप अंडरस्टूड है कि हम सपोर्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे नाम अगर मैं लूँ तो सपोर्ट रिएक्शन. ठीक. जैसे अगर हम वेरी सिंपल, मैं आपसे कहूँ कि मार्कर है मेरे पास, एक मैं इसका सिरा इस हाथ पे रख लेता हूँ, दूसरा मैं इस हाथ पे रख लेता हूँ, और जब ये हिल रहा है ये ऐसा रखें कि आप ऐसे जूम नहीं करेगा. ठीक. क्या आप इसके लिए
ये मेरे पास दो सपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं प्लेस करने जा रहा हूँ इस स्केल को, ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे ये जो स्केल है ये इक्विलिब्रियम में है